Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK caution, which have been specifically curated from today's newspapers. So if you have not gone through today's news analysis, please go through those news analysis. And most of the question have been framed from today's Hindu newspaper as well as Indian Express. So either they are directly in the newspapers or they are related to today's news. Let's go by one question. So which of the following online companies face disruptions due to a glitch in their system? So four options are there and we have discussed this. Everywhere it was in news. So the answer is Microsoft. So answer for first is going to be B. Next question, what is the name of Microsoft cloud platform which was most affected by a glitch in a software update? So we will discuss this also. This name was provided in today's news analysis and the name is Azure. So second का answer हो जाएगा A. Next question, which is India's nodal agency to deal with cyber security incidents in India? So third question from the same news item. So again, the India's nodal agency, which is there to notify for cyber security threats, is CERT-In, India's computer emergency response team. So answer for 3 is going to be B. Next question, who is the current civil aviation minister of India? So who is the current civil aviation minister? So it is Kinjarapu R.M. Naidu, who has become the new civil aviation minister. So you need to know at least all the cabinet ministers of India. Okay, the major ones, important one. Next, which of India's neighbor is witnessing a civil unrest due to student protests? So very easy question. So it is the country of Bangladesh which is looking at or which is witnessing a civil unrest because of student protest. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो अभी वहां पे जो प्रीवियस आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो अपना ट्रस्ट वोट हार गए हैं. पुष्प कुमार दहल प्रचंड हार चुके हैं अपना और अब केपी शर्मा ओली हैज अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. तो वहां पे बहुत ज्यादा इस टाइप के डिस्ट्रप्शंस होते हैं. तो यू शुड नो जब आपका एग्जाम पास में हो तो कौन उस नेपाल का प्राइम मिनिस्टर है. सो प्रेजेंटली वो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली. सो 6 का आंसर हो जाएगा बी. सो एटलीस्ट जुलाई के अंदर में तो केपी शर्मा ओली ही है. नेक्स्ट इज हु डिड छत्रपति शिवाजी महाराज फेमसली किल यूजिंग हिज वाघनाक? सो इसको भी हमने डिस्कस करा है एंड इट इज अफजल खान जो बीजापुर सल्तनत के जनरल थे जिनको शिवाजी महाराज ने वाघनाक से किल करा था. Next is the dispute over the construction of the Satluj Yamuna link canal primarily involved West Indian states. So ये एक सतलुज यमुना लिंक है जो कई सालों से कंस्ट्रक्शन में है एंड बिकॉज दोनों पार्टीज या दोनों स्टेट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है. जो अपर रिपेरियन स्टेट है जिसके जहां से रिवर स्टार्ट होती है यहां से रिवर इस स्टेट में क्रॉस होगी वो एग्री नहीं कर रहा है. और जो दो स्टेट्स इसमें प्राइमरली इन्वॉल्व हैं वो है पंजाब एंड हरियाणा. एंड इसमें एक और मेंशन नहीं है, दिल्ली इज ऑल्सो इन्वॉल्व बट मेजरली इट्स अ डिस्प्यूट. सतलुज यमुना लिंक जो है इट इज मेजरली अ डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा. Which of the following state has the largest population of elephants in India? So मैंने आपसे ये न्यूज एनालिसिस में क्वेश्चन भी पूछा था कि किस स्टेट के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एलिफेंट्स के इंडिया के अंदर में, और वो साउथ इंडिया की स्टेट है दैट इज कर्नाटका, which means answer for 9th is going to be C. Next question, which of the following year was the warmest year on record as per World Meteorological Organization? So previous year, the year of 2023 was declared as the warmest year on record as per WMO, and as per many calculation and as per many prediction by the scientists, most probably by the time we enter in the next year 2025, 2024 would probably become the hottest year. But as of now, if the question comes up in this year's CLAT, the answer is going to be 2023. Do not get confused because the news is coming again and again repeatedly कि जो every month of this particular year है 2024 का it is the hottest year on record. So January, February, March, April, all of these are the hottest months ever recorded in the history of the meteorological records. However, for 10th, right now the answer is going to be 2023. So answer for 10th हो जाएगा C. Which of the following is true about electoral bonds in India? Which means इस particular statement में 3 statement आपके false हैं और एक ही true है. So पहला है they can be purchased only during designated period. So it is a true statement because सिर्फ 4 months के लिए अवेलेबल होते थे, अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुके हैं, बट स्टिल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्वेश्चन इस साल आ सकता है. So that's why this question has been framed. So सिर्फ आप designated periods आप ऐसे कुछ आपके 2 दिन होते थे, 3 दिन होते थे, सॉरी फर्स्ट 15 डेज होते थे आपके हर 4 महीने में. सो जनवरी, फिर अप्रैल, फिर सितंबर और फिर दिसंबर में आपके पास ये अवेलेबल होते थे. नेक्स्ट, दे कैन बी परचेज बाय फॉरेन एंटिटीज. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सिर्फ इंडियन सिटीजंस ही इसको बाय कर सकते थे. थर्ड, दे आर वैलिड फॉर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट बिकॉज इनकी वैलिडिटी सिर्फ 15 डेज होती थी, उसके बाद ये लैप्स हो जाते थे और इनका पैसा जो होता था वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाता था.
दे कैन बी बॉट यूजिंग कैश, अगेन फॉल्स, बिकॉज एसबीआई में आपका प्रॉपर अकाउंट होगा, उसके थ्रू ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू कर सकते थे, विच मीन्स द ओनली ट्रू स्टेटमेंट इज द फर्स्ट वन, दे कैन बी परचेज ओनली ड्यूरिंग डेजिग्नेटेड पीरियड्स। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च? सो ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी जिसके अंदर में आप बहुत मिनिमम प्रीमियम के बेसिस पे अपने फसल को, आपके जो क्रॉप होता है उसको आप इंश्योर करा सकते हो, और ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2016। सो 12th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज प्लानिंग टू एंटर इनटू अ कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सो किन के साथ यहां पे इंडिया एक कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के लिए स्टार्ट करना प्लान कर रहा है, एंटर करने के लिए? सो जो कंट्री जिसके साथ प्लान किया जा रहा है दैट इज जापान। सो अभी प्लान ही किया जा रहा है, एमओयू साइन करने की बात है इन मंथ और टू। प्लीज पे अटेंशन टू दिस न्यूज कि क्या जापान के साथ हम इस एमओयू को साइन करते हैं या नहीं करते, बट एज ऑफ नाउ किसी और कंट्री के साथ नहीं, जापान के साथ हम एक कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म को बिल्डअप करने की ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अगेन दिस वाज इन न्यूज। सो इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन द हाग, विच इज अ सिटी इन नीदरलैंड्स। Next, which of the following statement about the advisory opinion of the International Court of Justice is correct? Which means again इन चार स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही है, बाकी तीन गलत। तो अगर आप एडवाइजरी ओपिनियन का एक सिंपल फैक्ट जानते होंगे कि एडवाइजरी ओपिनियन नॉन बाइंडिंग होते हैं, तो आपको ये चारों पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इस स्टेटमेंट के अंदर में वो नॉट बाइंडिंग बताए गए हैं। यहां पे ये भी एक पॉइंट मेंशन है कि दे आर ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूएन ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसी, विच इज ऑल्सो अ ट्रू फैक्ट, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट भी बताना है, विच मींस 15 का करेक्ट आंसर इज बी। Next question, a rocket launched by Yemen's Houthis militants struck one of the largest city of Israel. Which city is the largest city of Israel, both in terms of size and population? So, अब ये पर्टिकुलर न्यूज मैंने इसलिए लिया है बिकॉज उसके अंदर में लिखा हुआ है तेल अवीव इज द लार्जेस्ट सिटी, इस टाइप से हिंदू के पेपर में लिखा हुआ है। हाउएवर जब आप थोड़ी सी रिसर्च करते हो फाइंड आउट कि इवन अगर मैं साइज वाइज भी देखूं, मैं पॉपुलेशन वाइज भी देखूं, तो जेरूसलम जो अब आपकी इजराइल की कैपिटल भी बन चुकी है, दैट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इजराइल। सो आंसर फॉर 16 इज गोइंग टू बी ए। सो बहुत सारी कंट्रीज जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल नहीं मानते, तेल अवीव को ही मानते हैं, बट यूएस उसको आपकी कैपिटल मानता है। इंडिया तेल अवीव को ही कैपिटल मानता है, जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल नहीं मानता है, और इजराइल जेरूसलम को ही, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको अपनी कैपिटल मानता है। एंड दिस इज इट इज द सिटी ऑफ जेरूसलम, जो लार्जेस्ट सिटी है इजराइल की, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज के हिसाब से भी जेरूसलम सबसे बड़ी है, एंड पॉपुलेशन के बेसिस पे भी जेरूसलम सबसे बड़ी सिटी है इजराइल की। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्टी टू द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA? सो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट ईरान और P5+1 कंट्रीज ने साइन किया था, यूरोपियन यूनियन ने। हाउएवर 2015 में साइन हुआ था। 2018 में आउट ऑफ दीज 4 कंट्रीज एक ने से विड्रॉ कर लिया था, यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया था, और वो कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट्स, विच मींस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 17 का जो आंसर हो जाएगा इट वुड बी यूनाइटेड स्टेट, जो विड्रॉ कर चुका है, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ JCPOA। Moving on to the next question, what percentage of seats are reserved under the Right to Education Act 2009? So social educational backward classes के लिए, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितने परसेंट सीट्स रिजर्व करना रिक्वायर्ड है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में? सो वी हैव डिस्कस दिस आल्सो। 25% सीट जो है वो रिजर्व करनी रिक्वायर्ड है अंडर RTE एक्ट, विच मींस 18 का आंसर हो जाएगा बी। So coming to the pen ultimatum question, what is India's position in the World Cyber Crime Index? So World Cyber Crime Index है जो कंट्रीज को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कहां से सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं और कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है। सो बाय दैट डेफिनेशन इंडिया इज एट द 10th पोजीशन, एंड आई होप इफ यू नो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट रैंक होल्ड करती है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में, यानी कि कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम ओरिजिनेट होते हैं और सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी साइबर क्राइम्स का उस कंट्री को हो रहा है। सो 19th में आंसर तो सी है इंडिया की पोजीशन का, बट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कौन सी कंट्री टॉप पोजीशन पे है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में। Finally, the last question for today, a very static question. Who was the first Governor General of the Reserve Bank of India? So, first Governor General अगर आपसे गवर्नर पूछा जाए आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या RBI का, तो आंसर हो जाएगा सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, जो फर्स्ट गवर्नर थे RBI के।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई, सो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, बट द आंसर इज वन ऑफ द ऑप्शंस ओनली। तो आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड आंसर इज वन ऑफ द 4 ऑप्शंस ओनली। ओके, बट फॉर 20th द आंसर इज ए। Okay, so these were the 20 question GK from today's newspaper. I hope you would be finding some interesting questions from here. So if you find something interesting, you can note down those questions. Okay, so that's it from my side for today. Thank you and have a very nice day.